Sum number 4, illustration. The following is the balance sheet of Godfrey Limited as on 31st March 2018. Liabilities 5,000, 6% preference shares of rupees 100 each, fully paid up, 5 lakhs. 40,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up, 4 lakhs. Capital reserve 25,000, 5% debentures of rupees 100 each, 2 lakh. Acquired interest on debentures 30,000. Creditors 1,55,000. अभी assets है. Goodwill 80,000. Patents and trademarks 20,000. Building 2,15,000. Plant and machinery 2,55,000. Furniture 60,000. Stock 90,000. Debtors 75,000. Cash at bank 12,500. Cash in hand 2,500. Profit and loss account 4 lakh और preliminary expenses 1 lakh. Total आएगा 13,10,000. The preference shares is in arrears for 3 years. It was decided to reconstruct the company for which the following scheme was approved by the court. The assets were revalued as building 2,50,000. पहला कितना था 2,15,000 था, अभी 2,50,000 हो गया, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ. प्लांट एंड मशीनरी 2,25,000, 2,55,000 था, 2,25,000 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 55,000, 60 था, 55 हुआ, डिक्रीज हुआ. स्टॉक 80,000, ये भी डिक्रीज हुआ है. और डेटर्स 70,000, ये भी डिक्रीज हुआ है. इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली. अभी यहाँ पे ये दो जो एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग एंड में करेंगे. पहले शेयर्स का, लाइबिलिटी साइड्स का सब करके कंप्लीट करना है. द प्रेफरेंस शेयर्स shall be converted into 7% preference shares of rupees 50 each. Number of shares being the same. अब यहाँ पे number of shares same रखना है, खाली उसको क्या करना है 7% of 50 rupees each. The equity share shall be reduced to rupees 3. मतलब 10 rupees से 3 rupees पे लाना है, मतलब 7 rupees जाएगा capital reduction. The 5% debenture shall be converted into equal number of 6% debentures of rupees 75 each. The debenture holders are also agreed to waive 50% of the accrued interest. Arrears of preference dividend to be cancelled. The creditors agreed to waive 30% of their claim to accept equity shares of rupees 30,000 in part settlement of their renewed claim. अभी journal entries. अभी सबसे पहले preference shares का entry देखो. क्या दिया है? The share preference shares shall be converted into 7% preference shares of rupees 50 each. Number of shares being same. तो entry क्या आएगा? पहला कितना था shares का? 6% preference shares of rupees 100. तो 6% preference shares debit 5 lakhs. 2 7% preference shares 50 rupees 2,50,000. और फिर बाद में 2 capital reduction account 2,50,000. तो इस तरीके से उन्होंने ये किया है. अभी नेक्स्ट, the equity shares shall be reduced to rupees 3. shall be reduced to rupees 3 मतलब क्या करोगे? कम करोगे. अभी देखो, पहला इक्विटी शेयर होल्डर्स रुपीज 10 each 4 lakhs. अभी रुपीज 3 कर दो उसको, तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 इंटू कितना इक्विटी शेयर्स है 40,000. 3 इंटू 40,000 1,20,000 और बाकी बचा हुआ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,80,000. अभी नेक्स्ट, the 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of rupees 75 each. अभी 5% debentures 100 rupees debit 2 lakh to 6% debentures of rupees 75. That is, अभी कितना debentures है वो देखना है हमें. 2,000 into 75, that is 1,50,000. फिर बाद में तू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस 50,000. ये हो गया डिबेंचर.
फिर बाद में द डिबेंचर होल्डर्स आल्सो एग्रीड टू वेव 50% ऑफ देयर एक्योर्ड इंटरेस्ट. एक्योर्ड इंटरेस्ट कितना है? 30,000. तो 50% वेव किया. एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 50%, 15,000 वेव कर दिया इसे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 15,000. अभी नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल का. द इक्विटी शेयर, सॉरी ये हो गया, ये पॉइंट हो गया. एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी कैंसल्ड. एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी कैंसल्ड. तो कुछ आएगा नहीं इसका. नेक्स्ट, the creditors agreed to waive 30% of their claim and to accept equity share for rupees 30,000 in part settlement of their renewed claim. अभी पहला 30% निकालो. 1,55,000 का 30%, 46,500. और बाकी पार्ट पेमेंट के लिए उन लोग कितना ले रहे हैं? 30,000. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 76,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उसका 30%, इसका 1,55,000 का, तो 46,500. ये टोटल आ गया. अभी एसेट्स की तरफ जाते हैं. बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 2,15,000 से 2,50,000, मतलब कितना एप्रिशिएट हुआ? 35,000. तो बिल्डिंग अकाउंट 2,50,000 माइनस 2,50,000 35,000 टू कैपिटल रिडक्शन 35,000. अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे पहले बताया था कि सम्स हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं. तो ये देखो कंबाइन एंट्री किया है उन्होंने. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है. प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया. कितना कम हुआ? 30,000. फर्नीचर्स कितना कम हो गया? 5,000. स्टॉक कितना कम हुआ? 10,000. और ये भी 5,000. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू फर्नीचर 5,000, टू स्टॉक 10,000, टू डेटर्स 5,000. तो 30 प्लस 5 35, 45, 50, 50,000. वैसे ही अभी उन्होंने आगे क्या दिया है कि इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. तो गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये चारों जाएंगे. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 6 lakhs. तो 80, 20, 4 lakh, 1 lakh. तो टोटल हो गया. अभी नेक्स्ट और क्या बचा है? अभी डायरेक्ट हमको कैपिटल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है. तो आज ये तुम लोगों को मैंने वर्क दिया है. प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड फाइंड कैपिटल रिजर्व. मैंने अभी तक सिखाया कैपिटल रिजर्व कैसा फाइंड आउट करने का. देखो तो भी एक बार बता देता हूँ. ये जाएगा क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर्स 2,50,000. ये भी जाएगा क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000. ये भी जाएगा बाय डिबेंचर्स 50,000 क्रेडिट में. बाय एक्योर्ड इंटरेस्ट 15,000. ये जाएगा क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 46,500. ये भी जाएगा क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 35,000. और ये सब एंट्रीज जाएगा डेबिट में. तो तुम लोगों को डिफरेंस निकालना है. 26,500 आएगा. यू हैव टू शो इट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और फाइंड कैपिटल रिजर्व. अभी इस सब में हम लोग एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं? तो बैलेंस शीट. ड्राफ्ट journal entries without narration and give an extract of balance sheet to show shareholders funds. Only shareholders funds. मतलब कौन सा दिखाओगे? प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना. देखो इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल अभी कितना है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 lakhs. तो आएगा 4 lakhs. फिर बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी मेरे को यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना आया? 26,500. और यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व है 25,000. 26 प्लस 25 कितना हो रहा है? 51,500. तो ये हो गया टोटल 4,51,500.
अभी नोट्स टू अकाउंट्स, ये 4 लाख कहाँ से आया? शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000 है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2,50,000। ये देखो, अभी नया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है अपना? नहीं, इनका मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। $1,20,000 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 2,50,000 बराबर है। तो ये चेंज होगा 3,70,000 आएगा। ये चेंज है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टेक्स्ट बुक का ही लिया था। एक मिनट, शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, और एक शेयर कैपिटल है यहाँ पे। हाँ, ये 30,000। तो यहाँ पे ये याद रखो, बताता हूँ तुम लोगों को। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगा वो बताता हूँ, कौन सा आएगा, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अभी देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख कैसे आया? तो प्रेफरेंस शेयर्स 2,50,000 है, करेक्ट? 2,50,000, 7% प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी कैपिटल क्या होगा? ये 1,20,000 और ये 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल समझ में आया ना तुम लोगों को? एक मिनट ना। $1,20,000 प्लस 30,000 जो क्रेडिटर्स को दिए, ये दोनों मिला के होएगा 1,50,000। ये है इसका इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो वो हिसाब से अभी हमारा सम अभी कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टूड। आज का सम सिर्फ बहुत छोटा लिया था, खाली बैलेंस शीट का एक पॉइंट बताना था। और नेक्स्ट सम में हम लोग जरा बड़ा सम लेने वाले हैं, और फुल फ्लेज सम रहेगा। तो 4 सम्स हो गए, और 4 more we are going to solve, then we will finish up this topic. Remember.